اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین رکن اور فریضہ ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 ستونوں پہ رکھی ہے۔ ان میں پہلا ستون شہادت اللہ الہ الا اللہ اور دوسرا ستون ایمان لانے کے بعد وہ نماز ہے جو کسی بھی حالت میں کسی بھی انسان پہ معاف نہیں، اور نماز کو ادا کرنا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان تمیز کرنے والی چیز صرف نماز ہے، کہ نماز سے ہی مسلمان پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور نماز نہ پڑھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا کریم سے ایمان کے متعلق سوال کیا، یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پہ رکھی ہے۔ نماز کے بعد پھر زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے۔ زکوٰۃ اسلامی معاشرے میں ایک اہم ترین چیز ہے اور ایک اہم ترین رکن ہے، جس کو ادا کرنے کے ساتھ ہم ایک انتہائی بہترین معاشرے کو قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر 70 سے زیادہ آیات میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ جہاں نماز کا حکم آیا وہیں اللہ نے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تقریباً 70 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ یہ ایسی عبادات ہیں جو اللہ نے پچھلی امتوں پہ بھی فرض کی۔ اللہ کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پچھلے انبیاء اپنی امتوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی امت کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اللہ کا کلام ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ زکوٰۃ اسلامی معاشرے کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، اور اللہ نے مالداروں کے مال کے اندر یہ غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے غریبوں کے لیے تمہارے مالوں کے اندر یہ حصہ رکھا ہے، اور اللہ تم سے یہ قرض مانگتے ہیں اور کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ جو غنی ہیں، اللہ جو کریم رب ہیں، اللہ جو خزانوں کے مالک ہیں، وہ آپ سے ادھار کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ سے قرض حسنا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ تو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ پہنتے ہیں، نہ ان کی اولاد ہے، نہ وہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ غنی لوگوں سے، مالدار لوگوں سے، اغنیاء سے، پیسے والوں سے جو قرض مانگ رہے ہیں، اللہ اپنے غریب بندوں کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اللہ اپنے مفلس بندوں کے لیے، اللہ اپنے نادار بندوں کے لیے، اللہ اپنے غریب اور فقیر لوگوں کے لیے آپ سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے قرض دے گا، جو میرے ساتھ معاملہ کرے گا، جو میرے ساتھ خرید و فروخت کرے گا، اللہ کہتے ہیں میں اتنا بڑا کریم رب ہوں کہ میں اس دیے ہوئے قرضے کے بدلے میں اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو دوں گا۔ اور فرمایا لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ زکوٰۃ دینے والا جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اپنے مال کو
अल्लाह के पास जमा करता है, वो अपने माल को अल्लाह के स्पुर्द कर देता है, और अल्लाह इतने बड़े अमीन हैं कि उस माल में कोई खयानत नहीं होती, बल्कि अल्लाह कहते हैं हम उस माल को बढ़ाते हैं, हम उस माल को और बढ़ाते हैं, हम उस माल को और बढ़ाते हैं। और अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर एक आयत के अंदर इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफिकून फी सबीलिल्लाह, कायनात के लोगों जो अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए अपने माल को अल्लाह को कर्ज देते हैं, युनफिकून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों, उसकी मिसाल ऐसे है, कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, कि जैसे किसान एक दाना बोता है, वहां से 7 डालियां निकलती हैं और हर डाली के अंदर 100 दाने होते हैं। अल्लाह कहते हैं यहाँ पे बस नहीं, बल्कि मैं करीम रब हूं, मैं अपनी करीमी के साथ वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, मैं जितना मर्जी बढ़ा दूं, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं। तो हमें चाहिए कि हम अपने मालों को पाक करने के लिए अपने मालों से ज़कात दें। आज इस उम्मत के अगनिया, इस उम्मत के उमरा अगर अपने मालों से ज़कात निकालना शुरू कर दें और वो उनके मुस्तहिकीन तक पहुंचा दें, तो मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि इस उम्मत से गरीबों का खात्मा हो जाएगा, इस उम्मत से फुकरा का खात्मा हो जाएगा, इस उम्मत से मिस्कीनों का खात्मा हो जाएगा। लेकिन क्या करूं कि इस उम्मत के उमरा, इस उम्मत के गनी लोग माल जमा करने के अंदर लगे हुए हैं, इन्हें ना हलाल की तमीज है, ना हराम की तमीज है, ना इन्हें कुछ नबी की सुन्नत का पता है, बल्कि एक माल की हवस है। तो सुने, अल्लाह का कुरान ये कहता है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह का कुरान वाज़े तौर पे ऐलान कर रहा है कि वो लोग जो अपने माल और दौलत को जमा करते हैं, सोना और चांदी और खजाने जमा करते हैं, यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और वो उस माल से अल्लाह का हिस्सा अदा नहीं करते, उस माल से ज़कात को नहीं निकालते, उस माल से गरीबों का हक नहीं निकालते, उस माल से वो मिस्कीनों का हक उन तक नहीं पहुंचाते। तो अल्लाह कहते हैं इन लोगों को अज़ाबे अलीम, एक बहुत बड़े अजाब की खुशखबरी सुना दो, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको एक बहुत बड़े अजाब की खुशखबरी सुनाओ। और फिर फरमाया यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, कल क़यामत के दिन ये जमा किया हुआ सोना चांदी अल्लाह इसको जहन्नम की आग से दागेंगे, अल्लाह जहन्नम की आग से गर्म करके फिर अल्लाह इस गरम सोने और चांदी से इन लोगों के चेहरों को, इनके पहलुओं को, इनकी पुश्तों को दागेंगे और ये कहेंगे हाज़ा मा कनज़्तुम, ये वो तुम्हारा खजाना है, ये वो तुम्हारा माल है, ये वो तुम्हारी कमाई है जो तुम संभाल संभाल के रखते थे, जिस पे तुमने अल्लाह का हक अदा नहीं किया था, ये वो माल है जिसको तुमने संभाला था और अल्लाह के हक को तोड़ दिया था, गरीबों के हक को छोड़ दिया था। हाज़ा मा कनज़्तुम, ये तुम्हारा खजाना है, फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, आज इस जमा किए हुए माल का मजा चखो और उनको मजा चखाया जाएगा। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। मेरे भाइयों, इस्लाम का ये अहम तरीन फरीज़ा ज़कात, साल में एक मर्तबा अल्लाह के नबी ये कहते हैं कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपने रब की कसम है, मुझे अपने रब की कसम है, मुझे अपने पालने वाले की कसम है कि मैं अपने पालने वाले की कसम उठा के कहता हूं कि अल्लाह के रास्ते में
खर्च करने से माल कभी भी कम नहीं होता, बल्कि वो माल बढ़ता है। उस माल के अंदर बरकतें आती हैं, उस माल के अंदर पाकीज़गी आती है, उस माल के अंदर तहारत आती है, उस माल के अंदर कामयाबी आती है। अल्लाह ने ये हिस्सा अपने मिस्कीन, गरीब, यतीम, बेवाओं और मिस्कीनों के लिए रखा हुआ है। इसलिए इस उम्मत के अगनिया अपने फरीजे को पहचाने, इस उम्मत के अमीर लोग अपने डिप्टी को देखें कि अल्लाह ने इनको ये माल दिया है, वो माल देने पे भी कादिर है और वो माल लेने पे भी कादिर है। वो माल दे के भी आजमाता है, वो माल लेके भी आजमाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हम आपको आजमाते हैं। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। अल्लाह कहते हैं कि मैं आजमाता हूं, कभी भूख दे के आजमाता हूं, कभी खौफ दे के आजमाता हूं, और कभी माल लेके आजमाता हूं, और कभी फल लेके आजमाता हूं। और अल्लाह आजमाता है, अल्लाह देखता है कि कौन शुक्र करने वाला है, कौन मुझे याद करने वाला है, कौन मुझे अपना रब मानता है, कौन मेरे सामने चल के आता है। इसलिए इस उम्मत के उमरा अल्लाह के हिस्से को वो अपने खजानों के अंदर न छुपाएं, अपने खजानों के अंदर अल्लाह के हिस्से को डाल के अपने माल को खराब न करें, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये ज़कात आपके मालों को पाक करने के लिए है, आपके मालों को तैयब और हलाल करने के लिए है। जब आप अल्लाह के रास्ते में देंगे तो आपका माल पाक हो जाएगा, अल्लाह के रास्ते में देंगे तो अल्लाह इससे राजी होंगे। और इस्लाम का अहम तरीन रुकन ज़कात एक अहम तरीन फरीज़ा है जो इस मुआशरे में बैलेंस करने के लिए कि एक तरफ अमीर हैं, एक तरफ गरीब हैं, आप ज़कात निकालेंगे तो मुआशरे के अंदर गरीबों के अंदर आसूदगी आएगी, गरीबों के अंदर खुशहाली आएगी, वो आपके लिए दुआएं मांगेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको, इस उम्मत के अगनिया को, इस उम्मत के उमरा को, इस उम्मत के मालदारों को ये हिदायत नसीब फरमा दे कि वो अपने मालों को पाक करने के लिए अल्लाह का हिस्सा गिन गिन के निकालें और अल्लाह का हिस्सा चुन चुन के निकालें और उनके मुस्तहीकीन तक पहुंचाएं। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इन्नमस सदक़ात लिल फुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफति क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाब वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। ये 8 जगह हैं जहां आप अपने मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हैं। जब आप अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे तो अल्लाह कहते हैं, मैं ऐसा करीम रब हूं जिसने मेरे साथ सौदा किया, जिसने मेरे साथ तिजारत की। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अगर कोई मुझे माल देगा तो मैं उसको जन्नत दूंगा, मुझे कोई माल देगा तो मैं उसको दर्जे दूंगा, मुझे कोई कर्जा देगा तो मैं उसको बढ़ा के, उसको मल्टीप्लाई करके उसको लौटा दूंगा। तो अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें अपने मालों को पाक करने के लिए ज़कात को बर वक्त अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।